عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے سورۃ الفاتحہ شریف کے اندر۔ اللہ پاک خود ایمان والوں کو فرما رہا ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بات یہاں پر واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بعض لوگوں نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو یہیں سے پٹڑی سے اتر گئے، اٹک گئے، جھٹک گئے، لٹک گئے۔ بابا جی دا سائیں کوئی نہیں ہوندا نا۔ آپ کو ایک مشورہ دوں، تو بول لو تو صحیح، تم ہی بہ گئے ہو نہ، ہاں نہ نا، سمجھ آؤں دی بھئی ہے، مشورہ دے سکتا ہوں؟ اچھا چلو 4-5 بول لینے نام دے لینا، باقی سن لو یہ پسند آوے تھا۔ آپ نہ جب محفل کرواتے ہیں تقریر پہلے کروا لیا کریں۔ اب قوم سوئی ہوئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے عشاء کے بعد انسان 2 گھنٹے تک ایکٹیو ہو کے جاگتا ہے، بعد چبیندہ پر بہ ہی جاتا ہے۔ سمجھ آؤں دی بھئی ہے، آپ ٹائم سے کروا لیں تاکہ یہ مقصد کی بات۔ اگر آپ ٹائم سے تقریریں سننے کے عادی ہوتے تو غازی ممتاز کو کبھی پھانسی نہ ہوتی۔ سمجھ آؤں دی بھئی ہے، ہوں آپ کو سبحان اللہ کا کہہ رہے پھر بھی 2-4 بولے باقی۔ اللہ ان سروں کو مزید اونچا کرے، لیکن بابا ان زبانوں کو کیا کرنا ہے جو کتے کی لڑائی پہ تو واہ واہ کرے اور مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ نہ کہہ سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے نا جی میرے سامنے والے بالخصوص آپ مہربانی فرمائیں، تہری پگڑی تو دھوکھا نہیں کھانا تسی۔ آدھے گھنٹے کا میں ٹائم دے بیٹھا ہوں، یہ الٹیمیٹم جو ہے نا یہ بھی پورا کرنا ضروری ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے؟ بولو سبحان اللہ پیار دینا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں نے ترجمہ کر دیا، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ لوگوں کا ترجمہ ہے، پر میں اعلیٰ حضرت رضوی المزاج ہوں تو بات انہی کے در سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرمایا چلا۔ عالم تخیل میں جا کے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دکھا، آپ کہتے ہیں چلا۔ فرمایا جو کہتے ہیں نا دکھا، جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں چلیں گے کیا؟ جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں وہ چلیں گے کیا؟ فرمایا میں تو چلنے کی توفیق مانگتا ہوں، راستہ دیکھا ہوا ہے، بس میرا رب چلنے کی توفیق دے دے تو کمال ہی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرق یہ ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں، بھائی دیکھا ہی نہیں ہے تو کلمہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی تجھے یہ راستہ ہی نظر نہیں آتا، اب کہتا مجھے ابھی دکھا۔ فرمایا دیکھا ہوا تم نے ہے، چلنے کی توفیق مانگو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جس دور سے ہم گزر ہیں نا یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر بندہ اپنے 2 نمبر سودے کو 1 نمبر بنا کے بیچ رہا ہے۔ اگر سیب کا رنگ لال نہیں نا تو تے رنگ کر کے بیچ دے، 2 نمبر سودے کو 1 نمبر بنا کے بیچا جاتا ہے۔ اگر یہ جو انار ہے یہ ریڈ نظر نہیں آتا تو رات کے وقت لال لائٹ اوپر لگاتے ہیں، دیکھنے والے سویرے جا کے ویسا کہتے تو شے ہی ہو رہے۔ جو ہی دکان میں کوئی بندہ گھستا اتنی لائٹیں جلا دی جاتی ہیں وہ بندہ پہچان نہیں پاتا، باہر آتا ہے تو سودا ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، 2 نمبر چیزوں کو 1 نمبر بنا کے بیچا جا رہا ہے۔ ایسے ہی لوگ 2 نمبر راستے پر ہونے کے باوجود قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں 1 نمبر راستے پہ ہوں۔ گرامی قدر حضرات، ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق تو مانگی یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پر سوال یہ ہے سیدھا راستہ ہے کون سا؟ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اللہ پاک نے اس سے اگلی آیت کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا۔ فرمایا سیدھا راستہ تم پوچھنا چاہتے ہو کس کا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر میرا انعام ہوا۔ پہلے تھا سیدھے راستے پر چلیے، یا اللہ سیدھے، سبھی کہتے ہیں سیدھے راستے پر، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر میں اشارہ دوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، چونکہ میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن تو انہوں سمجھ نہ آوے تو میرا اپنا رانجھ راضی نہیں ہوں۔ سمجھ آ رہی نا؟ ایک بندہ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بستر اپنے کندھے پہ رکھ، وزن اٹھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ میں کہ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں تو یہ نظام ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی نبی کا صدقہ ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں بستر نیچے ہوتا ہے، ہم اوپر ہوتے ہیں۔ سننے کے موڈ میں بیٹھے نہیں ہیں۔
और बोलो मुंह खोल के जरा सुभान अल्लाह को। मैंने कहा अल्लाह की रहमत है, बिस्तर नीचे होता है, हम ऊपर होते हैं। ये अजब अंदाज है कि बंदा नीचे है, बिस्तर ऊपर है। बोलो ना यार, ये कैसा रास्ता है। दूसरा आ गया, कहता जी दाढ़ी को ओवर कंट्रोल छोड़ दिया जाए, जहां तक जाती है चली जाए, ये सीधा रास्ता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। दूर से दिखने में लगे तो सही मुस्तफा का नौकर है, जिसको इतनी तहजीब नहीं, मैंने करना क्या है, उसे क्या पता कि सीधा रास्ता क्या है। और बात है मौसमी मुसलमान उमी आ जावे ना तो काड़े दी खोड़ दे विच पै जावे पानी, सारी बरादरी निकल आउंदी है इक्को वर्दी दे विच। गोडे छड़ सुने चंगा भला तगड़ा हो, गोडे फड़ के बैठे बच्चा काम ही इदा दे करे तो लत्तां फड़नियां पैण। उची बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, तगड़े होके बैठना चाहिए। मैनू वाल सारे आउंदे ने, लेकिन यार टाइम थोड़ा मेहरबानी करो। ये मौसमी मुसलमान 8 10 15 दिन वास्ते बस खत्म, यकदम गायब। ये साल में ये 8 10 दिन है मुसलमान रहने के। अब ये रास्ते हैं, और मैंने कहा बाबा रास्ते देख लिए सारे, एक रास्ता और भी है। कोई पैदा हुआ तब भी मिलाद, कोई फौत हुआ तब भी मिलाद, रबियुल अव्वल आया तब भी मिलाद, गुजर गया तब भी मिलाद, किसी वली का उर्स आ गया तब भी मिलाद। अब एक ये रास्ता है। अब देखना ये है कि ये रास्ते तो इतने हैं, सही किसका है। हर बंदा कुरान और हदीस लेके फिरता है। अल्लाह ने फरमाया सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिन पर अल्लाह का। मैंने पूछा बता, कहना मेरे ते अल्लाह का इनाम है। मैंने कहा कैसे, कहता मेरे 2 मदरसे थे अब 3 हो गए, अल्लाह का इनाम है। तीनों की मैं डक्का मार। दूसरे पूछा तू बता, कहता मेरे ते अल्लाह का इनाम है। मैंने कहा वो कैसे, कहता जनाब पहले 1 दुकान थी अब 2 हो गई हैं। तीनों डकना भी औखा हो गया। तीसरे ने पूछा तू बता, कहता मेरे से भी अल्लाह का इनाम है। वो कैसे, कहता पहले 1 फैक्ट्री थी अब 2 हो गई हैं। कमाल हो गया, अब तीनों की में डकी है। अब सभी कहते हमारे ऊपर इनाम है। अल्लाह ने फरमाया सीधे रास्ते पे चलो। लोगों ने कहा ये सीधा ये सीधा ये सीधा ये सीधा। अल्लाह ने फरमाया सीधा उन लोगों का जिन पर इनाम है। तो पता चला जिन पर इनाम है उनका सीधा, जिन पर इनाम नहीं उनका रास्ता सीधा। तो जब हमने कहा इनाम किस पे है, तो सारे कहने मेरे थे मेरे थे। और मैंने कहा मसला तो फिर वही का वही रह गया। कुरान मजीद ने फिर आवाज लगाई, कहते परेशान क्यों होते हो, तुम हमारे दर पे आओ तो सही। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया हर बंदे की बातों में मत जाना कि किस पर इनाम है। फरमाया अल्लाह ने इनाम या नबियों पे किया है, या सिद्दीकों पे किया है, या शहीदों पे किया है, या सारे वलियों पे किया है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। जरा बात गल दी वंड ना होवे ना तो तुसी बोल सकते हो, तो जे वंड होवे तो फिर सुभान अल्लाह बोलनी पैगी तुहानू। उच्ची बोलो जरा। फरमाया ये सीधा रास्ता है नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और सालेहीन का। अच्छा एक बात का तयन कर ले, ये अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब सियालवी आप तशरीफ फरमाए, मेरे बुजुर्ग बैठे और उलमा बैठे। अगर आप मुझे इजाजत दें शरीयत की रूह से, तो नबियों के अलावा जो सिद्दीक और शहीद और सालेहीन हैं, इन सब को मैं वली कह सकता हूं? बोलो तो सही ना, कह सकता मैं उलमा से कह सकता हूं, मैं शरीयत में इजाजत है। सुन ले, सिद्दीक भी वली होता है, शहीद भी वली होता है, वली खुद वली होता है, ये सब वली ये नबी। अब जरा मेरा तर्जमा सुनना तो मोल पाई सुभान अल्लाह के जे समझ आवेगा। फरमाया सीधा रास्ता किसका है? फरमाया सीधा रास्ता उनका जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। इनाम किन पे हुआ? 4 चीजें थी, वो 3 को हमने एक परी में, एक लड़ी में परो लिया। तर्जमा ये बना, सीधा रास्ता उन लोगों का है जो नबियों और वलियों के रास्ते पे चलते हैं। अब आ गई वजह फर्क, सुन लेना, जो नबियों और वलियों के रास्ते पे चलते हैं। अब बाबा किसी की दाढ़ियों पे मत जाना, कुरान पे मत जाना, मदारिस पे मत जाना, उसकी तकरीरों पे मत जाना। सोने कुरान क्या कहता है? फरमाया सीधे रास्ते पे वो है जो कुरान पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले। नहीं यार ए बंदे जैसे हाथ नहीं चुकते, पहले हाथ चुके सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ के जो नबियों वलियों
नबियों वलियों से जले। हाय 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 हाय, नहीं हाथ चुके तो बोल ही नहीं पाया। रख दे पानी, टाइम बड़ा थोड़ा, तो नारा भी नहीं लाना। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अभी कही ना बहुत शर्मा रहे हैं कि यार हरी पगड़ी वाले भी जोर शोर ला लेते हैं। अजय तो टाइम बहुत हो गया, तो टाइम ना लाता फिर मैं दस जोर की में लाईदा। हुजूर की जात के लिए हम इतना जोर लगाते हैं ना, एक गोली ना गवर्नर मर गया सी, उन्हें इतना जोर लाया सतावी तबाह कर जाओ जरा। हजूर वास्ते तो जोर लाने ने, पर अजय भी सिर हिलते पे ना, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मुफ्ती साहब आपके हैं, आप इनके हैं, लेकिन मैं तो आपका हूं ना, मैं कड़ा को बाहरों आया, लेकिन कम से कम यार बोलो तो सही। हुजूर के लिए नहीं बोलना तो किसके लिए बोलना है? तो मेरे भाई सैयद फुरकान शाह साहब फरमा रहे थे कि बूढ़ों को छुट्टी है, भाई बूढ़िया को नहीं छुट्टी। थोड़ा सारा तो बहुत हक बनता। देखो नहीं मेरा अपना भी राइट है ना। ओके जी, वो कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं लफ्ज़ बदल लेना। कभी कभी ये भी कह लेंगे होंगे ना, सियासी बयान ही है। ओ बैठे हो, अगर ही वो बूढ़ों को छुट्टी है तो बाकी सारे, मैं बूढ़े को क्यों छुट्टी है? वो इधर ज्यादा हक बनता है, इधर ज्यादा हक बनता है। क्यों? मैं आख्या जनाब 70 साल हो गए नबी के नाम से खांदे, अज बोलने की बारी आ गई तो छुट्टियां दे देना हजूर के नाम से। आ चुको सारे, आ चुक के नहीं तुम बोलते। बाबा कुरान कहता है सीधा रास्ता उनका जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम नबियों और वलियों पर हुआ। अब सुनिए, जो कुरान पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो कुरान पढ़ के नबियों वलियों से जले और को गया जनाब, तो बोलो तो सही ना यार। कम से कम तुम इतनी देर बैठे हो, कोई शायद इतू लेके जाओ ना। तो यार हुआ क्या है? कुरान पढ़ के लोग कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन कहेंगे दाता साहब नहीं जाना, बाबा साहब नहीं जाना, सदीलियां वाली नहीं जाना, हाँ तुमने सुल्ताने बाहू नहीं जाना। मैंने कहा जाना कहाँ है? मदीने चले जाने नहीं, होते भी कुछ नहीं। मैंने कहा हया कर, अगर कब्रों पे जाना इतना ही कोई बड़ा गलत अमल होता तो अल्लाह हज करने वालों से कहता है हज कर लिया चलो उधर। अल्लाह फरमाता है जाओ का ओए हज कर लिया, हुन मुस्तफा के दर पे आ जाओ ना। बोलो जी सुभान अल्लाह प्यार देना। अजीज़ान मुकर्रम, बात लंबी है, वक्त बहुत थोड़ा है। ये पता है बंदा कुरान पढ़ के नबियों वलियों के पीछे कैसे चल सकता है? जब तक दिल रोशन ना हो उस वक्त तक ये काम नहीं होता, और दिल तब तक रोशन हो नहीं सकता जब तक हुजूर करीब ना हो जाए। हुजूर भी करीब होते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, सिर्फ करीब नहीं, कईयों तो दूर भी होंगे। ये मौलाना तुमने बात मुश्किल कर दी। मैं कह जी एडी आसान करांगा भी हलवे तू ज्यादा चस दे, एडी आसान करांगा। हाँ ये सच्ची जड़ी गल है। मेरा भाई अपना आपने आलिमाना खिताब सुन लिया है, लेकिन अब तालिब इल्माना भी सुन लें। समझ आ रही है? अब मेरे तो ऐसी ही तकरीर होती है, लेकिन गल तुहाडी खाने च इंशाअल्लाह हमारे पास रिजवी सॉफ्टवेयर है, तुहाडे कंप्यूटर दे विच इंज फिट करांगे जे जिंदगी च को वायरस जावे कड तुसीं कदी बोलो ना तो फिर मैनूं चास आवे तकरीर करन दी। इंशाअल्लाह ऐसे दिमागी कंप्यूटर में मसला फिट हो जाएगा। कहें वो कैसे? अब सुनिए, आप मुझे बताएं सूरज दूर है के नजदीक है? दूर है। अच्छा सूरज दूर है। मैंने कहा ये नेड़े भी है कि नहीं? मैं कहा जो गर्मी लगती कहीं ना मंजी चुको छां ते ला जा, मैनूं तंग करदा है। बोलना यार, मैंने कहा इससे भी नेड़े है। उलमा बैठे हैं, सूरज भला पहले आसमान ते, दूए ते, तीए ते, चौथे ते। उलमा फरमाते हैं चौथे आसमान पे, और हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज कितने आसमान पे है? चौथे पे, और उल्टी जानिब हमारी तरफ है। कयामत के दिन हमारे सर के बराबर होगा, सीधी जानिब हमारी तरफ होगी। न जाने क्या कहर बरसाएगा। उस वक्त के लिए भी तैयारी कर लो। हमारे यहाँ शफात की तकरीर की जाती है, लोग कहते हैं मौलवी तो बख्शा के टुर गया है। मैंने कहा यही तुम्हें मार है, समझाने वाला भी सही ना समझा सका, और आप तो फिर माशाल्लाह। अब समझाने वाले को चाहिए ये बताए शफात वो करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक नारा लगाने से जन्नती हो गए। नबी पाक ने फरमाया था अशरा मुबशरा को तुम जन्नती हो, लेकिन जन्नती होने के बाद उन्होंने अपना मेयार मजीद बुलंद कर दिया। जन्नती होने के बाद उन्होंने नमाजें छोड़ी नहीं,
जनती होने के बाद उन्होंने हलाल और हराम की तमीज छोड़ी नहीं, जनती होने के बाद उन्होंने अखलाकियात का दामन छोड़ा नहीं, मजीद पक्का कर दिया। क्यों? इसलिए वो ये जानते थे हुजूर ने हमें जनती कहा है, हमारा कोई अमल ऐसा ना हो लोग कहें जनती ऐसे होते हैं। फरमाया हमारा मियार ऐसा है, लोगों को कहना पड़ेगा और जिसे मुस्तफा जनती कहे वो ऐसे होते हैं। अगर हमारे ऊपर वो शफात वाली हदीसें सच्ची आती हैं तो क़यामत का मियार तो पूरा करना। नमाजें पढ़ते कोई नहीं, माँ बाप का अदब करते कोई नहीं, हलाल और हराम की तमीज करते कोई नहीं, एहतराम नाम की चीज कोई नहीं, और कहते कि मैं जनती हूँ। मगर पुत्र तेन किसी गलत दुआई दी थी, पूरी खुराक खा, पूरी हदीसें सुन, राजी हो, पर वेख तो सही ना मेरे अंदर भी कुछ है, बोलो ना। तो बात यह है, ये सूरज दूर है ना जी, बहुत दूर है, ये क़यामत के दिन बड़ा करीब होगा, इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। और वही बात जो मुफ्ती साहब ने की, खुद ही को कर बुलंद इतना। मतलब क्या है, कभी कभार तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरना, हर रोज तो मैं किसको कहूँ, बहुत सारे हैं जिनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती, लेकिन तैयारी करनी चाहिए हम सबको। सूरज करीब भी है दूर भी है, वो कैसे? मैंने कहा एक पत्थर ला के यहाँ पे रख दो, सूरज निकलेगा ना इतने पत्थर रख पेड़ दे विच, मसला सारे दे सामने समझावांगे, लोग चुप के क्यों? आ गया जी। मैंने कहा शीशा लेकर जिसमें फेस देखते हो, चेहरा, मुंह, बूथा, जो भी कहना, कई दे बूथे ही होंगे, बोलो तो सही। तज़किरतुल वाइज़ीन में मौजूद है, जब ज्यादा देर हो, ये खतीब को चाहिए कोई ऐसी बात करे उनकी मुस्कुराहट आ जाए। हम कोई पागल नहीं है, हमें पता है इस वक्त तकरीर होती है ऐसे। अब समझ आई? शीशा भी रख दिया, मैं कहा जल्दी कर रहा है, पत्थर नु वेख चंगी तरह, चौं पासों पत्थर उठा के, मैंने कहा चंगी तरह वेख लिया, मैं एक बार देर वेख लिया। मैंने कहा बता सूरज दूर है नजदीक है? पत्थर जो देख लिया, नहीं सूरज दूर तो बहुत है। मैंने कहा अभी अपने मौका पेड़ा हुआ है, चलो पत्थर फेंक दिया। मैंने कहा शीशा उठा, मैं कहा देख चंगी तरह हर पासों देखना ही। शीशा ऐसे उठा के, मैं कहा की होया? कहता चमकारा पै गया। मैं कहा कादा? ओके सूरज दा। मैं कहा किथे? आके सूरज इथे। मैं कहा जालमा जी इथे सूरज है, ओथे केड़ा है? ऊंची बोली यार, सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये क्या हो गया? और तू कहता है कि सूरज दूर है, अब कहता है सूरज जाए, मुंह में तेरा थल्ले। नहीं यार हाथ नहीं चलो, या तो कड्डो यार, समझ आ रही है? और जरा पिलर ना बैठा बाबा तू भी बोल, तू तेदा बैठे जो इमरान खान धरने से बैठा होता है। बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? आप आइए जरा वापस के बात बताने लगा। बाबा बात ऐसे तो नहीं ना बतानी है, मोल तो नहीं खराब करना, मैं आपकी झोली में कुछ बात तो है ना। मैंने कहा ये सूरज तू कहता है दूर है, आप यहाँ कैसे आ गया? कहा मौलाना ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा आप बताओ कि तुमने पत्थर देखा कि देखा? मैंने कहा वहां सूरज था। कहता नहीं था। मैंने कहा इसका मतलब है पत्थर से सूरज दूर है। मैंने कहा तुमने शीशा देखा कि देखा? मैंने कहा सूरज का यहाँ तो नजर आ गया। क्यों? मैंने कहा उसमें वो क्वालिटी नहीं जो इसने अपने अंदर पैदा कर ली। और यही फर्क है नबी के करीब और दोनों का। और जिसका दिल पत्थर हो जाए मदीने वाला दूर हो जाता है, और जिसका दिल ये शीशा बन जाए मदीने वाला करीब आ जाया करता है। ऐसे वास्ते ताजदारे गोला पीर मेहर अली ने कहा था जब ये पर्दे हटे तो ये कहना पड़ा ये सूरत रू में जा बैठा। नहीं मोल पाया यार, बोलना बाबा कईयों ने अब तक लिखा है मार के मिट्टी हो गया। मैं कह जना दी मिट्टी होनी है, उन्होंने ऐसा ही लिखना था ना है? ये जिनसे पर्दे हटे उस आला हज़रत फादर बरेलवी और जिस इमाम अहमद रजा का दिल शीशा था, उसे जब मुस्तफा के जलवे नजर आए दूसरे कह दिया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बस मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाले। अरे बाबा आज तुम नक्शबंदियों के उर्स में बैठे हो, और ये नक्शबंदी सिलसिला सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मिलता है। ये सबक तो उन्होंने भी दिया है। वो कहते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी लाश को उठाना मुस्तफा के रोज़े पे ले जाना। सौखा नहीं है सियापा के नारे लगाना, ये अपने अंदर कुव्वत पैदा करो हक बयाने की। ग्रामीण कदर हज़रात, मैं नौकर सियापा था, मैंने क्या गौर कर, नौकर बन नौकर, गद्दार नहीं। कब बोलोगे यार सुभान अल्लाह?
नौकर पूरा बन। सिद्दीक़ अकबर तो ये जाते पैगाम दे रहा है मेरा नबी जिंदा है। और फिर हुआ क्या, जब आपकी लाश मुबारक वहां पर लाई गई उस वक्त कहा गया या रसूलल्लाह आपका गुलाम आया, रोज़ा रसूल से आवाज आई, जिंदा थे तो आई ना। और ये मैं कोई अखबार का तराशा नहीं पढ़ रहा, मुहद्दिसीन किराम ने इसकी तशरीह फरमाई, फरमाया अदखिल हबीब अल हबीब, फरमाया यार नु यार को ले आओ ना। समझ आई या कोई नहीं आई बाबे हो? आदमी को सीधा रास्ता मिलता ही तब है जब दिल रोशन हो जाए, और दिल रोशन होते तब है जब मुस्तफ़ा का कुर्ब मिल जाए, जब मुस्तफ़ा का कुर्ब मिल जाए। बाबा जिस सिलसिले के अंदर आप में से अक्सरियत बयात है, मैं कादरी हूँ और मुझे कादरी होने पे फख्र है, जिस सिलसिले में आपको फख्र होना चाहिए, अपने सिलसिले को कमजोर मत समझा कर, दूसरों को हकीर भी ना समझा कर, ये हमारी कमजोरी है। हम अपने आप को फख्र में आके ना बस फिर फख्रन फखूरा, ये काम खराब हो जाता है। फख्र करें लेकिन दूसरे को हकारत की नजर से ना देखें। अजीज़ान मुकर्रम, नक्शबंदी वाला किसे कहते हैं? ना हुक्का पींदा, ये लोगों ने दुकानदारियां कईयों ने बनाई नहीं, नक्शबंदियों को भी कईयों ने जनाब परेशान किया हुआ है ना। नक्शबंदी ना हुक्का पीता है, ना लहसुन खांदा है, कच्चे गंडे खांदा है, प्याज, ना हुक्का पीता है, बदबूदार चीज के करीब जाता ही नहीं। पूछा क्यों? फरमाया हमने बदबूदार रहना नहीं। पूछा क्यों? कहता है पता नहीं कब यार आ जाए हम बदबूदार ही फिरते रहे, हम बदबूदार रहना नहीं चाहते। और फिर ये होते कैसे हैं? शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक झलक बता दूं अगर जाग रहे हैं तो, इसलिए भी बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जब दिल रोशन होते ना तो फिर क्यों होते हैं? हुआ क्या, आपके कुछ मुरीद थे, ये सीरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी की जितनी कुतुब हैं उनके अंदर ये बात मौजूद है। कईयों ने बेतफसील लिखी, कईयों ने थोड़ा सा इशारा दे दिया, इजमाली तौर पर लिख दिया। आपके मुरीदीन का एक हल्का अहबाब था, बड़ी कुर्बत थी उनके साथ। सभी मर्द औरतें वो हज करने के लिए गए, वापस आए ना पीर साहब से मिलने के लिए, पर्दे के अंदर औरतें बैठी, औरतों को बिठाना भी पर्दे में चाहिए, समझ आ रही है? वो पर्दे में बैठी हैं, आपने हाल चाल पूछा, पर्दे से एक बुढ़िया माई की आवाज आई, अगर इजाजत हो तो कुछ हम भी अर्ज करें। फरमाया जी कीजिए। कहा जी हज करने का बहुत मजा आया, हुजूर का रोजा भी देखा, कमाल हो गया, पर एक बात है जो मेरे दिल में अभी तक मुझे तंग करी। बता क्या है? आखे जो मेरा ब्याह होया सी ना, वो बुढ़ी माई आखन लगी मेरी मां ने मैनू अंगूठी पाई सी। हुण मैं तुहानू नहीं आखना तुसीं उच्ची बोलो, ये जो गल मुक्केगी तुसीं आपे ही बोलोगे। मेरी मां ने मैनू अंगूठी पाई सी ते उस वक्त जमजम के कुएं से पानी निकालने के लिए डोल फेंके जाते थे रस्सियों के साथ। वो पीर साहब मैं वो छाप अंगूठी रिंग वो पहनी हुई थी, मैं जो डोल वे सिटिया ना ते ओ तिलक के ते मेरी डेग पई थी, खूह दे विच जा पई है। हज तक कर रही हैं पर मां दी निशानी डेग पई है। बस ए गल मेरे दिल दे विच है, बाकी ते बड़ा मजा आया है। उस वक्त मुर्शिद जलाल में बैठा था, मौज में बैठा था। फरमाया माई हुण तो हबीब दे दर तो आवे ते रंजीदा रवे, अंगूठी चाहिए है। समझ आइए? वो बोले जिसको नहीं आई मुझे हाजत ही कोई नहीं, कहा अंगूठी चाहिए है। बीबी ने कह दिया जी करीमों के दर पे आए हैं, मेहरबानी हो जाए तो और चाहिए क्या? जरा तवज्जो रखना बात समझ आए तो। वरे बाबा किया क्या? आपने जिस मुसल्ले पे बैठे थे इंज करके उन्हें इंज हटाया, ऐसे अपना हाथ डाला, नीचे से पानी का चश्मा जारी हो गया, आपने अपना हाथ बीच में डाल के ऐसे निकाला, वो अंगूठी हाथ में दी। फरमाया अय्यो बस 10 मिनट है हजे मेरे पास। कहने जी पौने 1 बजे का टाइम तो होवे ना बजी, असी 12 बजे आई हुई है तक, असी तो अल्हम्दुलिल्लाह इच्छा भी मुफ्ती साहब को पढ़ी नहीं समझ आई है। और बोलो तो सही ना, ये सबक देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है हमें भी। नाराज ना हो इंशाअल्लाह, तो अद्धे घंटे काम पूरा हो जाएगा। बाबा बोलो तो अजीज़ा ने मुकर्रम आप आइए, आप आ नहीं जी ये ठीक है, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, बैत करना कोई इतनी जरूरी काम है? मैंने कहा जरूरी ना होता तो कुरान मजीद में इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका
इन्नमा युबायिऊन अल्लाह पाक नाज़िल न फरमाता ये इतना ही जरूरी है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है। कि क्यों? मैंने कहा जब पेंशन मिलती है, पैसा आता है, अपने जब भी कोई सामान बेचता है, प्लाट बेचता है, पैसे कहाँ रखता है? घर में रखता है? नहीं, कहाँ रखता है? कहता मैं नहीं इत्थे रहने, सीधा बैंक च मैनू दे। एक तो हो जाएंगे चेक, तो दूआ जमाना है नहीं, जमाना है नहीं। मैं क्यों क्यों जमाना है नहीं? अरे यार कारी साहब की करिए, साडे हुक्मराना ने हालात ही इदां दे बनाए आ, एडे नकम्मे। ये तो आप पनामा च डाकू बने हैं। पनामा का पंजाबी टर्म है डाकू है। कई पता ही अज लगा होना। अच्छा हाँ जी, पांच पांच घंटे तुम तबसरे सुनते लो, इको लफ्ज़ पनामा का माना की है डाकू। ते डाकू भी आम नहीं जेडे रात मगरब टाइम लुटते हैं तीशा वेले घर, ये डाकू ने इंटरनेशनल। हाँ हाँ, ये पनामा का तर्जमा। ये साढ़े हुक्मरान जो दुनिया ने डाकू आख्या, एडे लानती ने फिर नहीं गए। लेकिन कोई ऐसी गल नहीं, तुम टेंशन ना लो, जे रहे वो दिहाड़े नहीं ना राणे। यजीद ने भी बड़ी आदत चुकी सी, नबी पाक और नबी की आल को बर्दाश्त नहीं करता था। मिट गया ना, कुत्ते की मौत में होया ना। तो जेडे हुण महफिल भी नहीं, हमसे इजाजत लो, तू मामा लगना महफिल दा, बोलना सुभान अल्लाह। तेरे को इजाजत केड़ी गल दी रही है? कंजरियां नचन ब्याह माते ते आके तहफ्फुज़ देंदे हो जालिमो। जब मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र किया जाए तुमसे इजाजतें मांगे, याद रखो जिसने मुस्तफा के जिक्र को रोका है बचा नहीं है। आप भी संभल जाओ, डुलिया बेरा दा अजे कुछ नहीं गया, अजे भी टोकरा भर लो जालमो, अजे भी भर लो। हुक्मरानों को कह रहे, समझ आ रही है? कल्ला जिंदा तो ना होया। हाँ हाँ, वो जदों तक उन्होंने फांसी नहीं सी ना हुई, कल्ला मुमताज सी। हुण तो असीं सारे ही मुमताज हाँ। अल्लाह की कसम चुक के मैं गल करदा, पर जदों दा जनाजा वेख्या ना, चाह ही चढ़िया फिरदा है यार, कोहदे वाला काम कर जाइए, मरण दा सुआद ते आवे ना। यकीन अल्लाह ते करो जनाब, हैं वक्त का गवर्नर मरे 24 बंदे पढ़े, जनाजा पढ़ाने वाला लभे ही ना। वो लभ्या जिन्हें जिंदगी च आखरी पहली बारी पढ़ाया। वजिया एक खलोता, तुहानू हासा भी खुल के नहीं आउंदा। की ख्याल है? जिंदगी च आखरी तो पहली बारी पढ़ाया। हाँ जे है तो मैनू विखाओ कित्थे। कदी किसी ने सुनिया ब्याह लानती जने जनाजा पढ़ाया? दफा दूर तक काला मुंह तो नीले पैर, पता नहीं गया ही केड़े पासे। मैं हक बजाने दूं, मैं हक बजाने दूं। लेकिन इन्होंने समझा एक आम छोटा जिहा मौलवी मर गए, कांस्टेबल मुमताज कादरी उधर जनाजा पढ़न आए 26 बंदे, जुतियां सने क्योंकि सीगे जो जुतियां दे लैक। बोलना सीख लेना तो सारे काम वो जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए हैं। और इधर जब मुमताज कादरी हुजूर पे कुर्बान हुआ, ओ पीर और जेड़े 3 दिन मुलाकातां दा टाइम नहीं दिते, मैं उन्हां नूं तकिया खांदिया वेख्या, वो कहन लगे ने ओदा जनाजा पढ़ लेंदे हो, असीं बसिया ही तो आ जाना है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अजीजा ने मुकरम, कदी तुसी अपने आप को समझ लो ना, सुनियो तुहानू कोई ताकत दबा सकती नहीं है। लेकिन करें क्या, हम तो बट के बहुत रंगों के अंदर। बस मैं इस पर अगर तबसरा करूंगा कहीं टोका फिर जाना है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, टाइम बड़ा थोड़ा। वापस हटोगे? अच्छा सारियां छड्डो, गल फिर दी कित्थे सी? ना ना ना, मुमताज तो पहलो जिथों मुमताज आलमा हो। मुफ्ती साहब, हाय हाय हाय, ओ मेरा हक बनता है मैं आपसे ये बात करूं। गल इत्थे चलदी पई सी, बैत करना इतना ही जरूरी है। और मैं बता रहा था कि अपना जब तनख्वाह मिलती है तो कहाँ जाते हो? बैंक जा। इत्थे गल थी, अगर इन्ना की याद न रखिए सानू सदे कौन है? क्यों हजरत जी? दोस्ताने मुकर्रम बैंक में चले गए जनाब, वहां पर जाकर रखे जी जमाना है नहीं, लोट लेंदे ने। मैंने कहा अच्छा, कीमती से कीमती चीज को कहाँ रखते हैं? हिफाजत वाली जगह पे। अच्छा, मैंने कहा कमाल हो गया यार, अभी तक तुझे बैत की समझ नहीं आई। हम बैत करके करते क्या है? हम अपना सिलसिला जोड़ लेते हैं, असा जी हो जाए हैं लजपाला के हाथ ही हाथ दिता है, साढ़े ईमान की हिफाजत हो जाए। मैंने कहा दुनिया का सामान बचाना है तो तुझे बैंक में जाना पड़ता है, अगर तुझे ईमान बचाना है तो किसी अल्लाह के वली की चौखट के जाना पड़ेगा। नहीं जी, अल्लाह के वलियों को जाना चाहिए।
اور میں کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے سی. تو مسلم شریف جلد 2 کتاب الفضائل باب اویس فضائل اویس القرنی او دے اندر حضرت اویس کرنی دے بارے حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے جناب حضرت عمر پاک جناب حضرت مولا مرتضی آپ دونوں نے بھیجا لباس دے کے, فرمایا اویس کرنی کے پاس جاؤ, یمن میں رہتا ہے وہاں جاؤ, میرا لباس جا کے دو اور اسے کہو میری امت کے لیے دعا کرے. یہ حدیث مولوی پڑھ کے کیوں نہیں سناتا؟ اگر اللہ والوں کے پاس نہیں جانا تھا تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ان کو کیوں بھیجا؟ وہ بتانا یہ چاہتے تھے اللہ والا جہاں بھی ہو جایا کرو, کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, بالخصوص مفتی صاحب بیٹھے ہیں, میں یہاں پر اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں. توجہ, میں قسم اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں, حضرت اویس کرنی حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی نوکر ہے, مولا علی کا بھی نوکر ہے. پتہ نہیں میری گل سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو, سمجھو میں قسم اٹھا کے بات کرتا ہوں. وہ ان دونوں کا نوکر. کمال ہو گیا, مقام و مرتبے میں ہے چھوٹا, بڑوں کو بھیجا جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. دوستان مکرم مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے اللہ جسے چن لے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, اللہ جسے چن لے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اپنے مرتبوں کو نہ دیکھنا. اگر ہے اللہ والا تو وہاں پہنچ جانا, کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اگر ابھی بھی بات نہیں سمجھے تو میں دوسرے رخ سے سمجھا دیتا ہوں. عزیزان مکرم, حضرت عمر پاک کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا, حضرت صدیق اکبر کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے نا, بال کی کھال اتارنی چاہیے نا, پتہ لگے ہٹ کے شاید. سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزان مکرم, مولا علی کو بھیجا, حضرت عثمان کو کیوں نہیں بھیجا, طلحہ زبیر کو کیوں نہیں بھیجا, سعد و وقاص کو کیوں نہیں بھیجا؟ لو سن لو تاکہ آپ کو پتہ چلے اصل حقیقت کیا ہے. دوستان مکرم, تاجدار مدینہ علیہ السلام نے جب بھیجا نا حضرت اویس کرنی کی طرف, تھے تو ولی نا, آپ صحابی نہیں, حضرت اویس کرنی تابعی ہیں, یاد رکھ لیں. مدینے میں آئے ہیں, حضور کی ظاہری حیات میں آئے, حضور مدینے میں تھے پر ملاقات نہ ہوئی, دیدار نہ ہوا. کیوں؟ ماں نے کہا تھا سیدھا مسجد میں جانا واپس آنا. حضور مسجد میں نہیں تھے, گھر تھے, اور مسجد اور گھر کے درمیان کوئی دروازہ نہیں تھا, ایسے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا. اب ایسے کرنی اگر چاہتے تو پردہ ہٹا کے مصطفیٰ سے مل سکتے تھے, پر کیا اگر پردہ ہٹ گیا تو ماں دا کیا مڑ جانا ہے. سبحان اللہ پہ آپ وہیں سے واپس چلے گئے تھے. آج ہم بھی اسی ماں دیا شانہ سننے جدو ماں مار جاندی ہے. قاری صاحب ماں دی شان پڑھی, ناز خان صاحب ماں دی شان پڑھی, پیر فرقان شاہ ماں دی شان پڑھی. اور میں کیا ظالم ہے, اور جدو ماں مار گئی ہے ہوں شانہ سن کے دل ہوا کرنا ہے, اور جدو جیوندی سی ادا سن لیندا. بولو سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی کو جتنا رتبہ ملا ہے ماں کی عزت کے صدقے میں ملا ہے. حضور کا عشق وہ تو اندر ہے نا, لیکن بظاہر علماء نے جو وجوہات اور ترجیحات لکھی ہیں ان میں ماں کی عزت اور احترام ہے. لیکن جو بات بتا رہا ہوں, حضرت عمر کو کیوں بھیجا؟ اس واسطے, ان وانڈ سن لے آجے, اس واسطے بھیجا. نبی پاک نے فرمایا جس راستے پہ عمر چلے شیطان نہیں چلتا. ویسے تو سمجھ جان اے ہوندا نا 10 بجے دا ٹائم, میں ویکھدا تو کی میں کرنٹ لگدا تو چس آوندی. جس راستے پہ عمر چلے اس پہ شیطان نہیں چلتا. تو عمر تو چلا تھا ولیوں کی طرف, تو جناب شیطان ولیوں کی طرف جا نہیں سکتا کیونکہ راستہ عمر کا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ شیطان کوئی ولیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا کیونکہ حضرت عمر کا راستہ ہے. جس راستے پہ عمر چلے اس پر کوئی شیطان آئے, ہٹو شیطان نہ, حضرت عمر کا راستہ ہے. آج سمجھ آئی ہے مطلب کیا تھا حضرت عمر کو بھیجنے کا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا عمر جس راستے تو جانا ہے نا, شیطانہ کوئی نہیں جانا. مٹھے بولو کہ تو کو فوت نہ ہو جائے نا, آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے, انے نو کی دیسے تک کی دیکھے. ویسے وہاں لفظ دیدہ کو. اب آجے مولا علی کو کیوں بھیجا؟ حضرت عمر کا بانڈ سمجھ آ گئی ہے, تو بولو تو صحیح نا.
اب آ جاؤ حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ اس واسطے کہ لوگ آج کہتے نہیں میں کچھ نہیں، میں تو بس علم کی بات کرتا ہوں، میں تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں۔ اب فرمایا چھوڑیا ادھر دیکھ، اسی علی نو کل دے پے ہیں، کیوں؟ فرمایا میں علم کا شہر اور علی دروازہ۔ فرمایا جو مصطفیٰ کے مدینہ العلم یعنی علم کے شہر کا دروازہ ہو، جس راستے پہ سارے عالمہ تو بڑا عالم چلے، اس راستے پہ کوئی جاہل نہیں چل سکتا۔ حضرت علی جس راستے پہ چل گئے اب اس پہ جاہل کوئی نہیں چل سکتا۔ تو علی تو چلا تھا ولیوں کی طرف، بولنا سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جو حضرت عمر کے راستے پہ چلے سمجھ لو سیدھے راستے پہ ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے راستے پہ چلے سمجھ لو وہ سیدھے راستے پہ ہے، اور جو نہیں چلتا حضرت عمر کی طرف دیکھیں تو پھر نہ چلنے والا شیطان بنتا ہے، اور اگر مولا علی کو دیکھے تو نہ چلنے والا جاہل بنتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ٹائم ہو گیا پورا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔